Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter Minerals and Power Resources, and under this chapter, we are doing the sources of power. And as we have seen, we can divide the sources of power into two categories. The first is this conventional sources of power, and the second is non-conventional sources of power. In conventional sources of power, uh, what are the conventional sources of power? These are this for fossil fuel, firewood, and hydropower. And under fossil fuel comes coal, petroleum, and natural gas. And as we know, these are non-conventional source of energy. These are conventional source of energy because they are in use for a very long period of time. Since time immemorial, we are using these as a source of power. And then we were also discussing the non-conventional source of energy, and in this non-conventional source of energy comes solar energy, wind energy, then nuclear energy, and the another one is geothermal energy. We in the previous class we have discussed up to nuclear energy, and we were discussing the geothermal energy. So the heat energy which is obtained from the earth is called geothermal energy. And what we find that this heat energy can be used to generate power. And what we find that in the form of hot spring, this geothermal energy has been used for cooking, heating, and bathing for several years. And at present we find that USA has the world largest geothermal power plants. And after USA, there are countries like New Zealand, Iceland, Philippines, and Central America. So these are the largest producing, largest geothermal. These are the countries which have largest geothermal power plants. Okay, so geothermal energy we are talking about. एंड दिस जियोथर्मल एनर्जी का जो सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स है वो कहाँ पर है? इट इज़ इन यूएसए, है ना. And after USA, the countries which are there are New Zealand, Iceland, Iceland, Philippines, and Central America. And in India also geothermal plants are there, and these plants are located in Manikaran in Himachal Pradesh and Puga Valley in Ladakh. These are the two states where this geothermal power plant is located. In India, two states are there, Himachal Pradesh and
द सेकेंड इज लद्दाख. एंड द प्लेसेस इन हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्लेस है? मणिकरण. और लद्दाख में कौन सा प्लेस है? लद्दाख में जो है दैट इज पूगा वैली. And now in your book you can see it is given how this geothermal energy is used to generate power. सबसे पहले ड्रिल करके जो नीचे का वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, उसको खींचा जाता है. उस हॉट वाटर की जो हीट होती है, उस हीट से टरबाइन जो है वो मूव करता है, और टरबाइन के मूव करने से जनरेटर चलता है, जिससे कि this energy is generated. And now we will see some of the advantages of geothermal energy. The most important advantage is its clean energy. It's eco-friendly. It causes no pollution to the environment. And second is it is always available. Availability is always there. So these are the two advantages of geothermal energy. And now we will see the disadvantages of geothermal energy. So what we find that these geothermal power plant जहाँ पर बनते हैं, those places are far away from cities, because जहाँ पर भी आपको हॉट स्प्रिंग होगा वो शहर के अंदर नहीं होगा. That must be located far away from cities. So it becomes costly to transport the electricity, क्योंकि जनरेट तो हो रहा है शहर के बाहर, फिर उसको शहर में लाया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो है कॉस्ट बढ़ जाता है. ठीक है. अब इसके अलावा एक और तरह की एनर्जी होती है जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं, जो कि इसी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में ही आती है. टाइडल एनर्जी वो एनर्जी जो टाइड से प्रोड्यूस होती है. टाइड जो समुद्र में जो वेव्स होते हैं, है ना, उन वेव्स से जो एनर्जी हार्नेस की जाती है, उसी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं. सो टाइड से जो एनर्जी जनरेट होती है उसको टाइडल एनर्जी कहते हैं. और इसके लिए इन ऑर्डर टू हार्नेस और इन ऑर्डर टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, व्हाट इज़ डन, डैम्स आर बिल्ड, है ना. डैम्स बनाए जाते हैं एट नैरो ओपनिंग्स ऑफ द सी. जो सी के नैरो ओपनिंग्स होते हैं वहाँ पर डैम्स बनाए जाते हैं. जब हाई टाइड आता है तो जो टाइड की एनर्जी होती है उसको यूज़ किया जाता है टरबाइन को मूव करने के लिए, जो कि डैम में इंस्टॉल होता है. ठीक है. जो डैम बनाया जाता है उसमें टरबाइन लगा होता है. तो जब हाई टाइड आता है तो उस हाई टाइड के एनर्जी से टरबाइन मूव करता है, और इस टरबाइन के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि हम जहाँ भी जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसमें हम यही कर रहे हैं कि हमारा मेन पर्पस है टरबाइन मूव करे. टरबाइन से के मूव करने से जनरेटर चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो कैसे टरबाइन को मूव करना है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. तो टाइडल एनर्जी में हाई टाइड्स जो है उसकी एनर्जी को यूज़ करके टरबाइन को मूव किया जाता है, और इस तरह से टाइडल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है. अगर आज के समय में हम देखें तो टाइडल एनर्जी जो है वो बहुत बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ये जनरेट हो रहा है टाइडल एनर्जी. इसके लिए टाइडल मिल फार्म्स भी बनाए गए हैं. जैसे हमने देखा था ना विंड मिल के फार्म्स होते हैं, वैसे ही टाइडल मिल्स के भी फार्म्स बने हुए कई सारे कंट्रीज़ में, लाइक रसिया, फ्रांस, और हमारी खुद की कंट्री में जो गल्फ ऑफ कच्छ है
वहाँ पर हम ये टाइडल मिल्स फार्म्स देखते हैं। ठीक है, तो रसिया, फ्रांस, ये दो कंट्री हैं जहाँ पर कि टाइडल मिल फार्म्स देखने के लिए मिलते हैं और बड़े लार्ज स्केल पे वहाँ पे टाइडल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, और अगर इंडिया में देखें तो हमारा जो गल्फ ऑफ कच्छ है वहाँ पर ये एनर्जी जनरेट की जाती है। ठीक है, now we will see what are the advantages and disadvantages of this tidal energy. So what we see that tidal energy, all the non-conventional source of energy are clean energy. They cause no pollution, lesser pollution, or almost no pollution. ठीक है, तो ये इसका सबसे बड़ी एडवांटेज सब में आ जाएगा। ये it's a clean source of energy and it causes no pollution and the second thing is inexhaustible. जितने भी हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने देखा, सोलर एनर्जी है, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे जियोथर्मल एनर्जी हो, सारे के सारे जो है दे आर इनएग्जॉस्टिबल। अगर इसमें हम देखें एग्जॉस्टिबल कह सकते हैं तो हम न्यूक्लियर पावर जो है दैट मे बी एग्जॉस्टिबल, बिकॉज यूरेनियम और थोरियम जो कि मिनरल्स हैं, है ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनसे ये जनरेट होता है, जो कि नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, तो उनका जो ट्रेजर है वो लिमिटेड है, तो उसको हम नहीं कहेंगे। बाकी सारे जो है वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। ठीक है, तो दीज आर द टू एडवांटेजेस एंड देन डिसएडवांटेज जो है वो है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट पे इससे असर पड़ता है, बिकॉज आप जो डैम बना रहे हैं दैट इज़ अ काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द एक्वेटिक लाइफ, है ना। एक्वेटिक लाइफ में इंसान जो है उसका इंटरफेरेंस हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि वाइल्ड लाइफ जो है वो बैडली इम्पैक्ट होता है और हार्नेस करना भी इतना आसान नहीं है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। सो दीज आर द disadvantages of tidal energy. And now we will see the next type of non-conventional source of energy, and that is biogas. बायोगैस से हम क्या मीन करते हैं? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं लाइक डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, देन किचन वेस्ट, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना। ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, है ना, जो कि सॉइल में मिल जाते हैं, जिनको बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर देता है और इस तरह से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, दीज ऑर्गेनिक वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस फ्यूल एंड दिस गैसियस फ्यूल इज नोन एज बायोगैस। ठीक है, इसी गैसियस फ्यूल को हम बायोगैस कहते हैं। जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हमारे होते हैं उनको क्या किया जाता है कि एक बायोगैस डाइजेस्टर होता है ना, जिसमें कि सारे के सारे जो इस तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट हैं उनको डाल दिया जाता है और वो उसमें उनका डिकम्पोजिशन होता है बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करती है और
और इसी से जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करती है तो एक गैस एमिट होता है, इसी गैस को हम बायोगैस कहते हैं। और ये जो बायोगैस है ये मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। बायोगैस इट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो बायोगैस होता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये बहुत ही बढ़िया फ्यूल होता है कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए। और क्योंकि इससे न सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बल्कि इसको हम इससे ऑर्गेनिक मैन्योर भी तैयार होता है बहुत बड़े अमाउंट में, जो कि हम लोग फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो एक साथ 2 काम हो रहे हैं, 3 काम हो रहे हैं। आपका जो वेस्ट है वो इधर उधर बर्बाद होता, उस वेस्ट का यूज़ हो रहा है। यूज़ 2 तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है और मैन्योर भी तैयार हो रहा है ना। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ख़ास करके रूरल एरियाज़ में हम इस सोर्स ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और एनर्जी जो है इज़ एवरीवेयर, है ना। हम लोग जो है हमें इस एनर्जी को हार्नेस करना बहुत मुश्किल भी होता है और कॉस्टली भी होता है। एनर्जी है लेकिन आप उसको यूज़ कैसे करिएगा। सन में एनर्जी है, विंड में एनर्जी है, बट इस एनर्जी को हम यूज़ कैसे करें। यूज़ करना न सिर्फ डिफ़िकल्ट होता है बल्कि कॉस्टली भी होता है ना। और अगर हम सभी एनर्जी को वेस्ट ना करें तो दैट विल ऑल्सो बी अ कंट्रीब्यूशन फॉर दिस। एक तरह से हम जनरेट करेंगे अगर हम वेस्ट ना करें तो। अगर कमरे में कोई भी नहीं है और फ़ैन चला हुआ है, लाइट जली हुई है, तो ये क्या है, दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ एनर्जी। और अगर आप स्विच ऑफ कर रहे हैं तो इन अ वे यू आर जनरेटिंग, यू आर हेल्पिंग इन दिस जनरेशन ऑफ एनर्जी। ओके, सो एनर्जी जो हम बचाते हैं एक्चुअली वो एनर्जी जनरेट होती है। सो दिस इज द एनर्जी energy saved is energy generated. And by saving the energy we can make the future more brighter, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है कि हम एनर्जी को सेव करें। एंड नाउ वी विल डू सम ऑफ द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज डिफाइन मिनरल। ठीक है, सो हमने जैसे कि देखा था जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो वो इसी के साथ स्टार्ट हुआ था कि जो मिनरल है वो क्या होता है। सो वी हैव सीन दैट minerals are naturally occurring substance. Minerals are naturally occurring substance that has a definite chemical composition. That has a definite chemical composition. For example, gold, silver, iron. These all are minerals. Limestone. There are any number of items you can give. तो जब भी आपको क्वेश्चन है डिफाइन का तो एग्जाम्पल आपको देना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
And then we will see the next question, that is yes, the next question is classify the minerals. So we can see that minerals can broadly be classified into two parts, metallic and non-metallic. So the minerals which contain metal in raw form are called metallic minerals. Okay, like bauxite, manganese, iron ore. These are metallic minerals, and the minerals that do not contain metals are non-metallic, like limestone, mica, gypsum. Then again we can categorize this metallic mineral into two parts, ferrous and non-ferrous. Ferrous minerals are those minerals which contain iron, like this iron and manganese. Okay, and non-ferrous minerals are those which does not contain iron, and they may contain other metal as well, like gold, silver, copper, lead. These are the non-ferrous minerals. So you have to make the chart also. Minerals को दो पार्ट में, metallic और non-metallic. Then metallic will also be divided into two parts, ferrous and non-ferrous. And now the next question is, what are the different ways of what are the different ways of extraction of minerals? So we have seen there are three main types of three main ways of extraction of mineral, that is mining, drilling and quarrying. And then again mining can also be divided into two parts, open cast mining and shaft mining. Okay, and now and then all these mining, drilling, quarrying, इसको आपको डिफाइन करने के लिए हो सकता है इट इज़ गिवन इन द बुक. एंड जब हमने बताया था, चैप्टर डिस्कस किया था, तो भी हमने बताया था. सो वी डोंट नीड टू रिपीट दिस. ऑन पेज नंबर 23 इट इज़ गिवन. when we were discussing the chapter, it was discussed, so you can write on your own. So I am just writing the question. The question is, define डिफाइन माइनिंग, इसी तरह से होगा डिफाइन क्वेरिंग, है ना, डिफाइन ड्रिलिंग, देन डिफाइन ओपन कास्ट माइनिंग, देन डिफाइन शाफ्ट माइनिंग. ओके, एंड नाउ वी कम टू द next part of the question, and this we see that from this chapter map work is also important, because world map is given in your book, and in this world map you will see that the major producers of different minerals are given, like iron, copper and bauxite. So it is important for you to do you do this map work in your notebook. Okay, and one more map is there in which coal and mineral oil is shown, the distribution of coal and mineral oil in the world is depicted in this map. This should also be done by you. Okay, and now we will see the next question.
The next question is, why do we need to conserve minerals? This is the question. We need to conserve minerals because minerals are very much useful for us. We cannot live our life without minerals. And the second thing is minerals are non-renewable resources. The rate of formation is much smaller than the rate at which we consume them. So it is the third point is therefore it is necessary to conserve them by reducing wastage, by recycling of metals, and by reusing of the metals. Okay, so in this way you can prepare an answer. And now we will come to the next question. The next question is about the power resources. What do you mean by conventional sources of power? What do you mean by conventional sources of power? Conventional sources of power are those which have been in common use for a long time. For example, firewood, fossil fuel are the two main conventional energy resources. Okay, and now the next question is, व्हाट इज़ थर्मल पावर? इस तरह के एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुत सारे हो सकते हैं ना. थर्मल पावर क्या है? द पावर और द इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर, है ना. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, name the अब ये जो क्वेश्चन है ये सबके लिए आएगा और इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे. नेम द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड इज नेम द name the coal producing areas of India. अब ये जो है इस तरह का क्वेश्चन हर सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ बन सकता है. वर्ल्ड में कौन उनके लीडिंग प्रोड्यूसर है और इंडिया में कौन उसके प्रोड्यूसर है, चाहे वो कोल हो, चाहे वो ये पेट्रोलियम हो, चाहे नेचुरल गैस हो, है ना. इन सब के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं. और इसी तरह से हाइडल पावर में भी आएगा. तो ये सभी के लिए कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सब में ये क्वेश्चन आपका कॉमन होगा. लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ
in the world, dairy producers in the world, and main producing areas in India. ठीक है, इसी तरह से एडवांटेज और डिसएडवांटेज यू विल सी इट इज़ गिवन इन योर बुक इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट, है ना, तो दैट इज़ वेरी यूजफुल, उसको आप ज़रूर समझेंगे। और हर जो भी हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें हम लोग ये क्वेश्चन आराम से बनता है कि क्या उसका एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज, तो आपको यही पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। So this is all. We have completed the chapter, and now in the next class we will start a new chapter.